پاکستان کی 17 کروڑ آبادی میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور بدھسٹ بھی موجود ہیں۔ یہ غیر مذاہب سے تعلق ضرور رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، انسان ہیں اور سبھی پاکستانی بھی۔ وطن سے یہ غیر مسلم بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ کوئی مسلمان پاکستانی۔ ہمارے سبز ہلالی پرچم میں سفید رنگ انہی اقلیتوں کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ حکومت فوجی ہو یا جمہوری، اقتدار دائیں بازو کے اختیار میں ہو یا بائیں بازو کے ہاتھ میں، ہر دور حکومت میں ان اقلیتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں اقلیتوں کو اپنی عبادات کرنے، اپنے عبادت خانے بنانے اور مذہبی رسومات کو کھلے عام ادا کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ ہر دور حکومت میں ترقیاتی فنڈز بھی ان اقلیتوں کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ آج سچ کے سفر میں ہم اپنے ان مسیحی بہن بھائیوں سے ملیں گے جنہیں مسلم معاشرے اور سرکار سے کچھ گلے شکوے ہیں۔ یہ سب گلے شکوے ہمیں بڑا دل رکھ کے سننے ہوں گے۔ آج ہم ان عیسائیوں کی زندگیوں میں بھی جھانک کر دیکھیں گے جو خاکروب ہیں، وہ جمعدار جو منہ اندھیرے جھاڑو اٹھائے اپنے شہر کو صاف کرنے نکلتا ہے، اس کی اپنی زندگی کتنی بدصورت ہے۔ اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ اسلام آباد کی فرانس کالونی ہے، جہاں 680 کچے پکے مکانوں میں 5980 عیسائی آباد ہیں۔ اس کالونی کے اکثر لوگ جمعدار ہیں اور شہر کو صاف رکھنے کے ذمہ دار۔ انہی میں سے ایک اعجاز مسیح بھی ہے، جس کا وسیلہ رزق جھاڑو اور یہ پوچا ہے۔ کب سے جھاڑو تمہارے ہاتھ؟ بچپن سے ہاتھ میں جھاڑو ہے سر، صفائی کام ہے میرا، میں تو اسے برا نہیں محسوس کرتا، پر لوگ جب نفرت کرتے ہیں پھر بہت برا لگتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ بھنگی، جمعدار، چوڑا، تو پھر بہت سارا اندر تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہم بھی انسان ہیں یار۔ اس عیسائی نوجوان کا شکوہ بالکل درست ہے۔ ہم میں سے اکثر خواتین و حضرات زبان چلاتے وقت ذرا دھیان نہیں رکھتے کہ ہمارا شوق خطابت کتنے دلوں کو لفظوں تلے کچل رہا ہے۔ فرانس کالونی اور اس کے عیسائی باسیوں کو دل آزاری کے علاوہ اور کیا کیا مسائل ہیں، پوچھتے ہیں اعجاز مسیح سے۔ عیسائیوں کی کچی بستی ہے فرانس کالونی، اور ان کے مسئلے آپ کو پتہ ہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کے سینٹر میں رہتے ہیں اور ہم پھر بھی ان پڑھ ہیں۔ اکثر عیسائیوں کے پاس جمع داری کے علاوہ نوکری نہیں ہے۔ ہمارے پاس پورے شہر کا صفائی کا ٹھیکہ ہے، مگر ہمارا اپنا علاقہ جو اتنا گندا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ خود وزٹ کریں فرانس کالونی کا، خاص طور گندا نالا چیک کریں جا کے، جو ہمارے گھروں کے بیچ سے گزرتا ہے، ہماری زندگی کا آپ کو خود پتہ چل جائے۔ جس گندے نالے کا اعجاز مسیح نے ذکر کیا ہے، یہ کبھی برساتی نالا تھا، لیکن آج کل عیسائی بستی کے بیچوں بیچ بڑی ڈھٹائی سے گندگی کی لئی بن کر بہتا ہے۔ کچرے اور غلاظت کے اس جوہر نے علاقے کے عیسائیوں کی کیسے مت مار رکھی ہے، پوچھتے ہیں چند متاثرین سے۔ زندگی بہت خراب گزر رہی۔ کیوں؟ کہ گندگی ہے ادھر، کہ پانی آ جاتا ہے۔ ہمارے بچے کبھی کبھی نالے میں گر جاتے ہیں، جب بچے شیطانیاں کرتے ہیں تو وہ چیزیں اٹھا کے بھی نالے میں گرا دیتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ نالا جو ہے اس میں کچرا بہہ کے آتا ہے بہت پورے، اس کا جی بیماریاں ہوتی ہوں گی یہاں پہ۔ ہاں جی، بچے بھی جب بیمار ہوتے ہیں ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، بچوں کو کبھی ہیضہ ہو جاتا ہے، کبھی بخار مچھر کی وجہ سے۔ آبادیوں کے درمیان گندے نالوں کی موجودگی پورے ملک کا مسئلہ ہے، جو کہ ارد گرد بسنے والے انسانوں کو ملیریا، ٹائیفائیڈ اور مختلف قسم کے انفیکشنز میں تو مبتلا رکھتا ہی ہے، لیکن فرانس کالونی کے 6000 عیسائی جو پانی پی رہے ہیں، وہ ان لیک پائپ میں سے گزرتا ہے جو مدت سے اس جوہر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پائپس آ رہے ہیں پانی کے، ان میں لیکیج ہے، بالکل کسی کا پراپر تو لگا ہی نہیں ہوا، تو یہ جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہے یہ پیور واٹر کے ساتھ سارا مکس اپ ہو کے تو گھر میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو گیسٹرو کے پرابلمس ہیں اور اسٹمک کے پرابلمس بہت زیادہ انکریز ہو۔ زکام آئے دن ہوتا ہے، ان کے آئے دن پیٹ خراب ہو رہا ہے، زیادہ یہ پانی کی وجہ سے ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ پانی پینے کا کیسا ہے آپ کو ملتا ہے؟ یہی پیتے ہیں، گندا یہی جو آتا ہے جو انہی پائپوں سے آ رہا ہے۔ ہاں جی، یہی پیتے ہیں۔ جاری گل
हमें दसने की बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। बरसात के मौसम में फ्रांस कॉलोनी का गंदा नाला गरीब ईसाइयों पर कहर बनकर टूटता है। यहाँ लोग गटर साफ करके झाड़ू देकर अपने घर का जो सामान बनाते हैं, बारिश के दिनों में उसका क्या हशर हो जाता है। जब मैंने पूछा तो छोटे बड़े सभी लोग चीख उठे। जब बारिश आती है तब पानी आता है, जब बारिश आती है तब इतने कमरों में जा बैठता है पानी। वो जो खाना माना होता है, जुल्ली मुल्ली होती है हमारी, वो सब भीग जाती है। तो माँ जी, सरकार ने आज तक आपके लिए सोचा नहीं कुछ? कोई नहीं जी सोचा। सरकार ने साने आज ये जगह ही दी है और तो कुछ नहीं दी। आपको मालकाना हुकूक मिल गए? ये तो जी बड़े चिर दे आंदे मालकाना हुकूक आंदे हुण फेर आंदे ठालन डे, हुण कोई पता नहीं जी चलता। तब पुली के नीचे बच्चे नहाते हैं। बच्चे नहाते हैं इसमें? तो ऐसे मतलब कि पेट में भी दर्द होती है, कभी कुछ होता है। नाला खुला हुआ आप लोगों के यहाँ? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत मसला मसाइल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मच्छर इतने पैदा होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मलेरिया का शिकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों को लाहक हो जाती हैं। पाकिस्तान में बसने वाली ईसाई आबादियों के मसाइल सैकड़ों की तादाद में हैं। इंसानी हुकूक से महरूम ये आदम और हव्वा के बच्चे कैसी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। जब मैंने नाले के किनारे रहने वाली सम्मी सज्जाद मसीह से पूछा तो इन्होंने बताया, बिल्कुल साड़ा नाले ते घर। आपका घर? जी, हमारा घर नाले के ऊपर ही है। सैल गंद बहुत है, कच्चे मकान है। 2 साल हुए बहुत पानी आता है हमारे घर में। हमारा बड़ा जो बेटा ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कह रहा था कि हमारी क्या जिंदगी, हमारी जो चीजें हैं ऊपर से तार रही थी, हमारी क्या जिंदगी। इतने अरसे से आप इस्लामाबाद को साफ कर रही हैं, किसी ने आपसे कभी पूछा है कि बीबी आपकी जिंदगी क्या है? नहीं नहीं जी, किसी ने नहीं पूछा। फ्रांस कॉलोनी इस्लामाबाद महंगे तरीन सेक्टर F7 के ग्रीन एरिया पर आबाद है। पूरे शहर में सुई गैस मौजूद है। नहीं जलता तो गैस का चूल्हा इन गरीबों के घर नहीं जलता। आइए सुनते हैं उस मुल्क के शहरियों की महरूमियों का चर्चा, कुदरती गैस जिनके आंगन से निकलती हैं। आपको पता है VIP एरिया ये, और अभी तक ये देखें लोगों को बुनियादी सहूलतें मुयसर नहीं है। गैस लगाया थे फिर कट गए थे, हुण फिर बहुत मसला होता है रोटी के लिए। कहाँ लेके जा रहे हैं? गैस कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, ना कोई साडा इत्थे मोतबेर है, ना कोई गल करदा। असीं वक्त नूं फड़े आ, लकड़ी लिया के जलाने आ। माड़े बंदे आ, साडी बहुत मजबूरी है। शहर के दरमियान वाक़े फ्रांस कॉलोनी के ईसाई बाशिंदे गुज़श्ता 20 सालों से जो लकड़ी बतौर ईंधन जला रहे हैं, वो न सिर्फ इस्लामाबाद के वसी तरीन जंगलात को खत्म कर रही है, बल्कि इलाके में फिजाई आलूदगी फैलाने का भी एक बहुत बड़ा सबब है। बच्चे घर आना है ते बालन है नहीं, गैस भी नहीं, तो रोटी शोटी पकानी है तो कोई ये तैयारी नहीं। अब तो जंगलात भी बहुत कम हो गए ना, और ये कि कानूनी जुर्म है लकड़ी काटना। लकड़ी इधर से ही झाड़ू लगाते हैं, इधर से कोई लकड़ी मिल जाए तो रख लेते हैं इसमें, उधर जाके छांटी करके कचरा फेंक देते हैं, लकड़ी घर ले जाते हैं। जाहिर है उसका इफेक्ट तो होगा, इतनी अच्छी एनवायरनमेंट है यहाँ की। फ्रांस कॉलोनी इस्लामाबाद में एक घर खुर्शीद बेगम का भी है, जो गुज़श्ता 25 सालों से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA में बतौर जमादारनी काम कर रही है। आइए सुनते हैं उस इंसान का फलसफा मजहब जो झाड़ू के जोर पर वतने अजीज को साफ रखने पर मामूर है। पढ़ा लिखा को जिंदगी में? सब पढ़ा लिखा है। क्या पढ़ा है? ये झाड़ू पढ़ा है, और क्या पढ़ना है। बहुत खुशी से कर रही हूँ, इसलिए हमारे बच्चों की रोजी का मसला है। अगर काम ना करेंगे खाएं कहाँ से? बच्चे पढ़ाए जो हाँ जी, बच्चे पढ़ाए, दादा सबको कराइए। हम तो जब इस्लामाबाद से आए ना, मुसलमान की ईसाई की असी एक प्लेट में ही खाते हैं, असी यही पकाते हैं, असी उनको देते हैं, असी खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग नफरत भी करते हैं। कुछ लोग नफरत जड़े करते हैं वो छोटी कौम के होते हैं, जो नाई मरासी मोची लवार ये बने होते हैं ना अफसर, ये नफरत करते हैं। जड़े बड़े लोग ने ना उन्हें तलीम हासिल कीतियां होती हैं, वो नहीं करते। फी जमाना अक्सर माँ बाप अपनी औलाद से नाखुश नजर आते हैं, लेकिन जमादारनी खुर्शीद बेगम के बख्त देखिए और सुनिए कि पाकिस्तान में बसने वाले सभी गरीब
अपनी जिंदगी से गैर मुतमईन और नाखुश नहीं हुआ करते। जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी है जी, बहुत अच्छी गुजरी है। हाँ, बहुत अच्छी गुजरी है। जब शादीशुदा हुए हैं फिर भी अच्छी गुजरी है, जब बूढ़े हो गए हैं अभी भी अच्छी गुजरी है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने उन्होंने जिंदगी दे 7 पुत्रां दा मुंह धोने ने। बहुत अच्छे बच्चे ने, बहुत अच्छे बच्चे। आपकी वो जिंदगी से लगता है खुश हैं आप? मैं बड़ी खुश हूं अपने बच्चों में। कोई ऐसी बात जो दिल में है, कभी आप अकेले में याद करती हैं और कहती हैं कि ये मुझे मौका मिला तो मैं लोगों को बताऊंगी, कोई ऐसी बात बता दें? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई गम नहीं? मैं अपने दिल से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई गम नहीं है। मेरे नाल अल्लाह मियां है, अल्लाह मियां मेरी मदद करदा है। कोई मुश्किल नहीं है, मेका घर में भी कोई मुश्किल नहीं रही, सोरे घर में भी कोई मुश्किल नहीं रही। मैं बहुत खुश हूँ, आजाद हूँ। गुर्बत आटा और दाल क्या सांस नहीं लेने देती, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले गरीब बंदे ने बात बात पर रोने और खुद को मजलूम साबित करने का जो मुस्तकिल रवैया अपना रखा है, वो भी गरीबी का हल नहीं है। इसमें कुछ शक नहीं कि पाकिस्तान में बड़ी गुर्बत है, लेकिन इसमें भी कुछ शक नहीं कि हमारे यहाँ विलिंग वर्कर्स की अच्छी खासी कमी पाई जाती है। हर दूसरा इंसान हमारे यहाँ मेहनत करने से भागता है और हराम हलाल की तमीज किए बगैर रातों रात किसी शॉर्टकट के जरिए अमीर हो जाना चाहता है। खुशहाली हासिल करने के लिए तो पूरी कौम को दिन रात एक करना पड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान में एक कमाता है और 10 खाते हैं। दूसरी तरफ अगर ईसाइयों की कच्ची बस्तियों की तरफ ध्यान दिया जाए तो तालीम, सेहत, मेयारी तर्ज जिंदगी और रोजगार समेत कई इंसान वहां पीने के साफ पानी से भी महरूम नजर आते हैं। और इसमें किसी किस्म के नस्ली या मजहबी तासुब का कोई हाथ नहीं, बल्कि इसमें कसूर है उस बेबस निजाम का जो हमसे आज तक दुरुस्त ना हो सका या जिसे आज तक दुरुस्त होने नहीं दिया गया। अगर आप पाकिस्तान में बसने वाले मसीही बहन भाइयों के गिले शिकवे सुनना चाहते हैं, हकायक जानना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में गुर्बत के हाथों मारे जाने वाले कुछ लोग रियासती जमीनों पर पनाह गुज़ीन होते हैं। इब्तदाई दौर पर कच्ची बस्तियां तामीर करते हैं, इबादत खाने बना लेते हैं, और अगर कभी सरकार अपनी अराजी पर से उनका ये नाजायज कब्जा छुड़वाना चाहे तो अक्सर औकात गोली चल जाती है। लोग बिल्डोजरों के सामने लेट जाते हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इन सारे मामलात में मजलूम होने की बजाय विलन समझी जाती है। इंसानी हुकूक का झंडा उठाकर फिरने वाली कई जाली और नाम नेहाद तंजीमें ऐसे मौकों पर अपनी हट्टी चमकाने के लिए सड़कों पर निकल आती हैं। रिट ऑफ स्टेट को गली कूचों में चैलेंज किया जाता है। न जाने सरकारी माल पर हाथ साफ करना हम कब छोड़ेंगे। ईसाइयों की कच्ची बस्ती फ्रांस कॉलोनी कैसे आबाद हुई, कब तामीर हुई और अब वहां ईसाइयों की जिंदगियां क्या हैं? अगर आप हकायक की तलाश में हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत बसाए जाने वाले शहर इस्लामाबाद में भी सरकारी अराजी पर ईसाइयों का कब्जा बड़ी हैरत की बात है। आइए मिलते हैं क्रिश्चियन कॉलोनी के नौजवान रहनुमा परवेज जज्बी से, जो फ्रांस कॉलोनी के जायज या नाजायज होने की हकीकत पर से कुछ यूं पर्दा उठा रहे हैं। टीवी पे बताने के काफी